Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where today's task is to do one more problem based on Bill of Exchange, which is from the Maharashtra board for 12th standard. Okay, I hope you have not a little but a very good idea regarding what this chapter is. If you don't, please make sure that the lectures are always in an order. If this is the first lecture that you are seeing, then my request is don't see it. Look at all the previous lectures and then come to this one, so that the concepts, the very basic concepts, the ABCD of the chapter is understood to you. Okay, I will get started assuming कि आपने पिछले एपिसोड्स देख लिए हैं. निशांत कौन है पता नहीं, आगे पढ़ लो. ड्रॉज अ बिल, समझ जाओ ड्रॉवर है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन अभिनव फॉर 3 months ऑन 17th July 2019. डेट दिया है, अमाउंट दिया है. अभिनव कौन है? ड्रॉ ही होगा क्योंकि निशांत ड्रॉवर है. लास्ट लाइन पर पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत, वो तो ड्रॉवर है. तो आगे पढ़ने के पहले देख भाई, थोड़ी तैयारी कर ले. अच्छा, क्या क्या तैयारी करके रखनी है? एक तो निशांत का दुकान बना ले, सेल्स, कैश, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट. अभिनव को लिख ले. ऐसा चित्र बनाने का नहीं है, आप लोग कैसी भी शक्ल बना लो. ओके, और बाद में वो बैंक उस तरफ आ जाएगा, हम उसको देख लेते. ये बना लो. 2 पेज का जर्नल बना लो, ऊपर लिख लो इन द बुक्स ऑफ निशांत, सेलर एंड ड्रॉवर. इतनी तैयारी करके रख लो. आगे स्टीवन सर आपको बता देते हैं क्या करना है. चलो भाई, सबसे पहले तो हमने ड्रॉ किया निशांत पे एक बिल. आगे क्या हुआ? निशांत ने अभिनव पे एक बिल ड्रॉ किया. आगे कहा ऊपर, निशांत डिस्काउंट्स द बिल विथ हिज बैंकर्स एट 12.5% ऑन द सेम डे. सेम डे मतलब 17 जुलाई. डिस्काउंट का मतलब क्या है? देखो भाई, एक बार बिल बन जाता है और हमारे पास बिल आता है, हम ये प्रॉब्लम में 3 महीने तक अभिनव को हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. नहीं अभिनव अभी पैसे दो, नहीं कर सकते क्योंकि 3 महीना लिखा है. बट अगर आपको पैसे चाहिए अभी के अभी, तो आप एक काम कीजिए, बिल लेके बैंक को बेच दो और बैंक को बोलो, बैंक तू मुझको पैसे दे. बैंक देगा तुझे, बट बैंक थोड़ा पैसा काट के देगा, जिसको कहते हैं डिस्काउंट, और ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डिस्काउंटिंग. ओके,
इसका मैं आगे जाके एंट्री बता तो देता ही हूँ, बट सिर्फ याद दिला रहा था। ओके, आगे ऑन द ड्यू डेट। अभी वो ड्यू डेट को मजाक में मत लेना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 17 जुलाई को बिल बना है तो 3 महीने और 3 दिन आगे कौन सा डेट है, उसको ड्यू डेट कहते हैं। आगे, ऑन द ड्यू डेट अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत, अभिनव ड्रॉई है वो हमारे पास आ रहा है, टू एक्सेप्ट अ क्रॉस्ड चेक फॉर 5800। तो क्वेश्चन, क्रॉस्ड चेक मतलब, देखो भाई कभी कभी पार्ट पेमेंट जो होता है ना वो होता है कैश में, देन आजकल का जो डिजिटल ज़माना है उसमें तो बड़े आसानी से बैंक से भी हो जाता है, और अगर आपको कैश देना नहीं है या है नहीं, आप चेक दे सकते हो। बट जब यहाँ पे कहा ऑन द ड्यू डेट अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस्ड चेक फॉर 5800, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड क्या, अभिनव हमारे पास आ रहा है, याद रखना अभिनव हैज टू पे अस 25,000, बट ही इज गिविंग अस अ चेक ऑफ 5,800, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर ले लो ये चेक ले लो 5,800। तो अगर हम थोड़ा पूछे कि अभिनव तेरे को तो 25,000 देना है, ये क्या दे रहा है 5,800, आगे कहानी पता चलेगी। इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट, तो 5,800 के अंदर इंटरेस्ट है, याद रखना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 5,800 में ऐड नहीं करना, उसके अंदर 1,800 का इंटरेस्ट है। एंड टू ड्रॉ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। तो बेसिकली देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है, बट उनका थोड़ा ईगो बीच में आ जाता है, वो डायरेक्टली कि थोड़ा हेल्प कर देना मेरी नहीं बोल सकते, मतलब उनके मुंह से वो निकलता ही नहीं है, रिक्वेस्ट होता ही नहीं उन लोग से। चलो भाई हम थोड़ा बड़ा आदमी बन जाते हैं। तो जब ये पढ़ा हमने, हमको क्या क्या फीलिंग आनी चाहिए, हमको क्या महसूस होना चाहिए। वेल, ये अभिनव जो है ना बोल रहा है 5,800 का चेक लो, उसके अंदर 1,800 का इंटरेस्ट है, और बोल रहा है कि नया बिल बनाओ बाकी के लिए। क्यों? क्योंकि अभिनव के पास पैसे नहीं है। इसको कहते हैं रिन्यूअल। मतलब सर ऊपर कहाँ पे लिखा है रिन्यूअल, सर कहाँ ढूंढूं मैं? अरे यार ढूंढो मत, नहीं है, फीलिंग समझो। सर क्या मजाक कर रहे हो, अकाउंट्स के अंदर फीलिंग समझो। अब देखिए भाई ये एक कहानी है, तो फीलिंग तो है उसके अंदर, समझना तो पड़ेगा। दे विल नॉट राइट एंड गिव यू RENEWAL, नो, बट थोड़ा इशारा दे रहे। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी। आप लोग तो समझदार हो, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, तो द कंटेंट ऑफ रिन्यूअल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, नया बिल, सब कुछ तो है, तो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल करना पड़ेगा। ओके, आपको और मुझको रिन्यूअल करना पड़ेगा। आगे तो जो नया बिल है वो 3 महीने का है, याद रखना, 4 एंट्री आएगी। निशांत अग्रीज टू दिस प्रपोजल। आप लोग निशांत तो आपने बोला चल अभिनव समझ गए, रिन्यू करते, 4 जर्नल एंट्री। ओके, बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, नए बिल के डेट के पहले, अभिनव रिटायर्स द बिल। हमने पिछले लेक्चर में किया, रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि पैसे पहले ही देना। ड्रॉई जब पैसे देता है बट पहले ही देता है, ड्यू डेट के पहले। इनफैक्ट यहाँ पे बोला है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट था उसके 1 महीने पहले ही आके वो पैसे दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 बिल है, एक है ओल्ड बिल, एक है न्यू बिल। दोनों का ड्यू डेट आपको ढूंढना है। क्यों, क्या, कैसे, सब मैं आपको बोलता हूँ। बट आई होप आपकी तैयारी हो गई, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आगे पढ़ लेते हैं। निशांत ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन अभिनव फॉर 3 मंथ्स ऑन 17th जुलाई। पहले तो 2019 लिख लो, 17 जुलाई लिख लो। एंट्री क्या आएगी? एक्चुअली ना वो थोड़े चालबाजी की है। उन्होंने ये बोला ड्रॉज ऑन अभिनव, कहां पर भी नहीं बोला कि अभिनव ने साइन करके हमको दिया, बोला ही नहीं। बट आगे की कहानी उन्होंने बोली कि
निशांत ने बिल, हमने बिल बैंक को बेच दिया डिस्काउंट। नो प्लीज अंडरस्टैंड, समझदार को इशारा काफी है कि अगर निशांत बिल बैंक को बेचता है तो पहले उसके पास बिल तो आना चाहिए। तो इट इज अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभिनव ने बिल साइन करके हमको दे दिया। डोंट से सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन देख लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया सर, मेरे को तो कॉपी दिखा ही नहीं सर एक्सेप्टेड। समझ लो, इशारा काफी है। फर्स्ट बिल, नॉट बिल, जर्नल एंट्री, बिल रिसीवेबल डेबिट टू अभिनव, एंड आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग बिल एक्सेप्टेड 17 जुलाई। और फिर बड़े क्लियर शब्दों में ऊपर कहा, निशांत डिस्काउंट्स द बिल विथ हिज बैंकर्स एट 12.5%। तो वो थोड़ा अटपटा है, 12.5% ऑन द सेम डे। उसी दिन पर निशांत मतलब हमने ये बिल लिया और हमने बैंक को बेच दिया। कैसे? देखो ना, उठा के दे दिया। बैंक हमें पैसे देता है और थोड़ा पैसा काट के उसको डिस्काउंट कहते हैं। इसके लिए प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्या कि हाउ मच इज द डिस्काउंट? बिकॉज दे से 12.5%। बैंक डिस्काउंट क्यों काटता है? बिकॉज बैंक 3 महीना वेट करेगा। अंडरस्टैंड? 3 महीना वेट करेगा। हमको वेट नहीं करना, हमको तो पैसे बैंक से मिल रहे, बैंक 3 महीना वेट, तो ये वेटिंग का चार्ज है। ओके, आपकी ओला, उबर, रिक्शा, टैक्सी जो भी अगर रुकेगी भी ना ट्रैफिक में, मीटर चलते रहता है, रुकने का चार्ज। तो ये कैलकुलेट कैसे करिए? डिस्काउंट जो बीच में कटेगा बैंक से 12.5%, कैलकुलेट कैसे करिए? देखो, एक फॉर्मूला आता है ART, अमाउंट। कितना अमाउंट है ये बिल का? 25,000। कितना रेट काटेंगे वो? 12.5% अपॉन 100। और कितने टाइम के लिए? याद रख, टाइम लिखना अत्यंत आवश्यक है, मतलब जरूरी। सर हमने किया 12.5%, टाइम क्यों लिखना है? अरे 3 महीने बैंक रुकेगा, तो फिर तुमको थोड़ी 4, 6, 8 महीने के लिए करना है, 3 ही महीना, तो वो 3/12 तुझको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये पूरे चैप्टर में अगर परसेंटेज आता है तो अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, 8 फॉर्मूला आता। कितना है देख, थोड़ा अटपटा है। ओके, बिकॉज आप वो डेसिमल निकालोगे तो वो 125/100 बन जाएगा, बट यू विल गेट अ डेसिमल आंसर 781.25। इसको राउंड ऑफ करो, आपको आएगा 781। तो वो ऊपर में डिस्काउंट लिख देता हूँ 781। 25,000 का बिल है, बैंक ने काटा 781, तो बाकी का तो देगा ना, तो ऊपर देख लो 24,219। ये मैंने चुटकी बजा के किया। आपसे अगर नहीं हो पाएगा इट्स ओके, ले लो 1 मिनट एक्स्ट्रा, बट यू कैलकुलेट कि डिस्काउंट कैसे किया सर ने, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। मेरे को तो यहाँ पे ऐसे ही प्रदर्शन ही हो गया 781.25, मतलब 781 राउंड ऑफ करने का रूल। ओके, 0.5 से कम है, प्लीज नोट। हाँ, मैंने अगर ये बोला नहीं, डेसिमल के बाद 2 है, आगे मत देखना। अगर डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 आता है, 1, 2, 3, 4, तो द यूनिट्स प्लेस रिमेन्स द सेम। बट अगर डेसिमल के बाद 5, 6, 7, 8, 9 आता है, 0.5, 0.6, 0.7, तो यूनिट्स प्लेस 1 से बढ़ जाता है। ये राउंड ऑफ का रूल है। यहाँ पे एंट्री क्या है? देखो भाई, बैंक डेबिट उसका अमाउंट, डिस्काउंट नुकसान है हमारा डेबिट, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट वो 25,000 है। ये जो है ये सेम डेट पे है, तो चलो जुलाई 17 को ही लिख लेते हैं। बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बीच में अपना नुकसान हो गया डिस्काउंट का 781। आप ये डिस्काउंट की जगह पे रिबेट भी लिख सकते हो, चलता है, कोई गलत बात नहीं है। ओके, तो हमने बिल बैंक को बेच दिया, अभी अपने पास नहीं है बिल। अभी बैंक का काम है 3 महीने के बाद में जाके पैसों की वसूली कर लेना। ओके, किससे? अभिनव से। बट देन ड्रामा तो होता ही है। काय का ड्रामा? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। सबसे बड़ी बात यार, ड्यू डेट कैसे ढूंढते हैं? देख, जो बिल का डेट था ना वो था 17 जुलाई।
3 महीने का बिल था, तो 3 महीना 3 दिन तू जोड़ ले, तुझे आएगा 20 अक्टूबर। वेल अक्टूबर, थोड़ा और क्लियरली बोल देता हूँ, ये तेरा ड्यू डेट है 20th अक्टूबर। इस दिन पे जो भी डांस होगा रिन्यूअल का 4 एंट्री वो इस दिन पे होगा 20th अक्टूबर। ओके, लेट्स सी 2019 ही है, क्या करना है पढ़ ले। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल अभिनव रिक्वेस्टेड अबाउट निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस्ड चेक फॉर 5800। चेक पे लिखा है 5800 इंक्लूडिंग 1800 फॉर इंटरेस्ट। प्लीज ऐड मत करना, बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं। सर बोला इंक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूडिंग मतलब पहले से है। 5800 इज द टोटल चेक, उसके अंदर 1800 इंटरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए लेट मी शो यू द वर्किंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड बिल है 25,000 का, उसमें से अब भी बोला टोटल क्रॉस्ड चेक इज 5800, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, उसके अंदर इंटरेस्ट है 1800। प्लीज नोट दैट इज हाउ आई एम गिविंग, पहले टोटल फिर इंटरेस्ट। तो बेसिकली इंटरेस्ट के अलावा कितना है 4000, दैट इज द पार्ट पेमेंट। प्लीज नोट वो पार्ट पेमेंट है 4000। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया कि 25,000 का 5800 का पेमेंट नहीं हुआ, 5800 में इंटरेस्ट भी है, सिर्फ 4000 का पेमेंट हुआ है, तो फिर आपको न्यू बिल का अमाउंट सही से आएगा विच इज 21,000। अगर वो गलत आया तो एंट्री तो वैसे भी आगे जाके गलत आने वाला है। मैथ्स नंबर्स बहुत ध्यान देना ये चैप्टर में खासकर, बिकॉज द एग्जामिनर ही प्लेज अराउंड विथ वर्ड्स, खेल खेलता है, गेम। ओके, तो आपको उसके वजह से नुकसान नहीं उठाना। बोला 5800 का टोटल चेक, उसके अंदर पहले से इंटरेस्ट है, तो हमको बाद में पता चला कैलकुलेट करके लिख के कि 4000 बिल का पेमेंट है और बाकी बिल का बन जाता है 21,000। अगर ये आपके पल्ले पड़ा तो आने वाले 4 एंट्रीज वो बहुत सिंपल है, वो जल्दी हो जाएगी। कब हो जाएगी 20 अक्टूबर को। पहली एंट्री आपकी फर्स्ट ऑफ द रिन्यूअल इज बिल को रिटर्न कर दिया अभिनव को, तो इट इज अभिनव डेबिट और वो था बैंक को क्रेडिट। ओके, तो हम बीच में से हम पोस्टमैन का काम करते, बिल हमारे पास आता है, हम जाके अभिनव को दे देते हैं। ओके, तो ये पहली एंट्री हम हमारे ड्यू डेट पे लिख लेते हैं और ये हमारा ड्यू डेट था 20th अक्टूबर। अभिनव अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000 बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? ये स्टेप 1 अगर मैंने लिखा नहीं था ना, मैं सिर्फ एक बार बता देता हूँ। ओके, मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं ये आपको बता सकूँ कि रिन्यूअल के ये स्टेप्स हो रहे हैं। दूसरा है इंटरेस्ट चार्ज करो, तो ये इंटरेस्ट ऑलरेडी बोला था 1800 का है। ओके, थोड़ा घुमा फिरा के कहा था, बट इट इज अभिनव डेबिट टू इंटरेस्ट। डेट तारीख वही होगी क्योंकि पूरा प्रोसीजर रिन्यूअल का उसी दिन पे होता है। अभिनव टू इंटरेस्ट 1800 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने कहा है, मैंने पढ़ाया है, आपने सीखा है पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट मतलब पैसे ले लें, हमने अभिनव से पैसे लिए, तो दिखता तो ऐसे है कैश डेबिट अभिनव क्रेडिट, बट ना ये क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा, आई होप आपको पढ़ के आपको याद है, कहा है कि क्रॉस चेक मिला है, कैश नहीं मिला, तो कैश नहीं लिख सकते। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कैश के जगह पर कैश का जो वर्ड है उसके जगह पर आप बैंक लिख दो, क्योंकि जब चेक आता है तो बैंक का आना जरूरी है। तो वेरी सिंपल, आप बैंक लिख दो, क्योंकि क्रॉस चेक कोई भी चेक हो, बेरर चेक, क्रॉस चेक, आपको बैंक का वर्ड लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट टू अभिनव रेदर देन कैश अकाउंट टू अभिनव। 5800 वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर इंटरेस्ट मत जोड़ना, इंटरेस्ट पहले से ही जुड़ा हुआ है उसके अंदर। दैट इज हाउ उन्होंने ये क्वेश्चन को वर्डिंग की है। फिर क्या, फिर तो फोर्थ स्टेप है नया बिल।
अच्छा, नया बिल कैसे? देखो हम लोग बिल बनाते हैं अभिनव पे, वो साइन करके देता है, वो 21,000 के लिए है, 21,000। बिल रिसीवेबल, ये था फोर्थ स्टेप, डेट वही है 20th, टू अभिनव 21,000, बिल रिसीवेबल टू अभिनव 21,000 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद की कहानी क्वेश्चन में है, अगर आप ध्यान दो, बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। अगर आप लास्ट टाइम का लेक्चर आपने देखा, ये जो डेट है ना, रिटायरमेंट का डेट उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया था, यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे कहा बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल अभिनव रिटायर्स बाय पेइंग 2250, 1 month बिफोर द डेट। डेट सीधे सीधे बोला नहीं, बोला ड्यू डेट जो है उसके 1 महीने पहले। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये रिटायरमेंट कब हुआ, पहले आप ड्यू डेट ढूंढो। अच्छा, ड्यू डेट कैसे ढूंढे? देखो ये जो बिल था ना, ये लेटेस्ट बिल, ये बिल था 3 महीने का, तो 20th अक्टूबर के बाद आपको 3 महीना 3 दिन आगे जाना पड़ेगा। चलो आगे जाते हैं, 13 लास्ट टाइम की तरह आपको याद रहेगा यार, 13 एक्चुअली 13 नहीं होता, वो जैन होता है, बराबर 23 जैन 2020 ये ड्यू डेट है। बट इस दिन पे रिटायर नहीं हुआ, 1 महीने पहले, ऐसे बोला 1 month बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा, तो मतलब पहले हम लोग 23 जैन तक गए, अभी 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा, बराबर 1 month बिफोर 23 दिसंबर 2019। ओके, तो जो डेट आया है वो है 23 दिसंबर। तो इस दिन पे होता क्या है? रिटायरमेंट होता है। कैसे होता है? हमको जो बायर है, जो ड्रॉई है, पैसे देता है, कितने दिया? 2250। किसने कहा? क्वेश्चन ने बोला 2250 दिया, फिर हम लोग उसको बिल दे देते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो है 21,000 का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल रिसीवेबल, बीच में गैप है ना, उसको डिस्काउंट या रीबेट आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ड्रॉई जो है बायर जल्दी पेमेंट कर रहा है ना, तो थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है हमको उसको माफ़ करना पड़ेगा थोड़ा अमाउंट। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन में 750 माफ़ किया। तो हमारी जो एंट्री है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल गया, बीच में 750 डिस्काउंट है, वो हमने डेबिट में लिख लिया क्योंकि वो है नॉमिनल, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड एज इन व्हेन यू डू दैट आप नरेशन लिख लीजिए, और अगर आपको मार्क्स नहीं खोने तो आपको ग्रैंड टोटल करना पड़ेगा। कर लोगे तो हमेशा अच्छा है, आदत पड़ जाती है, और आपका हाफ या 1 मार्क्स एग्जामिनर डेफिनेटली काट नहीं सकता है। टोटल बिकम्स 1,24,600। अगेन आई होप the explanation and the type of explanation, जो तरीका था हमारा, आप सभी को समझ में आया, आ गया है तो लेक्चर को कृपया करके आप लाइक ज़रूर कर ले। उससे होता क्या है, यूट्यूब को पता चलता है कि भाई हाँ कुछ बच्चे ये देख रहे हैं और उनको वो समझ में भी आ रहा है, तो वो हमारे चैनल का रिकमेंडेशन और दूसरे बच्चों तक जो जिनके बीच में हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता ना, उन तक पहुंचाता है, तो उनकी भी हेल्प ऑटोमेटिकली लेक्चर से हो जाती है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, पुराने हो तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर्स के लिंक, और जब तक हम दोबारा ना मिले अपना ख्याल आप ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन अच्छा जाए, ऊपर वाले की मेहर आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।